One more example in that direction. We also say eigenvalue, इनको हम करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी बोलते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है ना, तो कहना सो फाइंड दी आइगन वैल्यूज और करेक्टरिस्टिक वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग characteristic eigen sorry characteristic functions, or you can say eigen functions for the following Sturm-Liouville boundary value problem. So we have this problem d by dx plus lambda by x y equal to 0 with boundary conditions. So y dash at 1 equal to 0 and y dash at e power 2 pi equal to 0 and lambda is a non-negative parameter. So what are the possibility of lambda? So what are P, Q, R in standard notation here? What is P? X. You can write this P is X. Q, Q is 0. R is 1 by X. Okay. And boundary, one boundary is 1 and another one is e power 2 pi, which is greater than 1. Lambda is non-active. So non-active means hmm? So we have two cases, either 0 or Greater than positive. 0. Negative नहीं है ना. So if lambda is 0, then problem reduces to d by dx, x dy by dx equal to 0. So on integrating, what you got, एक बार करोगे तो x dy by dx कांस्टेंट बन जाएगा, दो बार करोगे तो then you need to separate the variables. So a log x plus b आ जाएगा ना. ये आएगा. एक बार करोगे तो x dy by dx equal to constant. Then you write dy equal to a times dx by x. So this is the solution. Use boundary conditions. So to use boundary condition, differentiate it with respect to x. ठीक है. So y dash 1 equal to 0. This implies a A equal to 0. Okay. And both condition implies that a equal to 0. So likewise, previous problem, b can be any number. Okay, so y equal to b is a solution
We can take any non-zero constant. For simplicity, I am taking 1. So y equal to 1 is an eigenfunction corresponding to eigenvalue lambda equal to 0 or characteristic value. So you got one eigenvalue. For second case, you need to simplify a bit. You can also take lambda equal to k square if you want. So equation will be d by dx प्लस, अब कैसे बढ़े आगे? So you need to integrate, and now you have variable coefficient equation. But if you apply derivative here and multiply with this x, this one, if you simplify the equation, so you got x square d2y by dx square, x से multiply भी कर दो, so which is well known Cauchy-Euler equation. तो सोल्यूशन क्या होंगे? y इक्वल टू एक्स पावर आर. ठीक है, फिट करो, सिंप्लीफाई करो. तो आर माइनस 1 प्लस आर प्लस के स्क्वेयर, ये बनेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो आर स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इक्वल टू, सोल्यूशन एक्स पावर आर की फॉर्म में होंगे. फिट एंड सिंप्लीफाई, सो यू गॉट आर इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के. यही आएगा. तो सोल्यूशन क्या होंगे? भूल गए? कॉम्प्लेक्स रूट है. So y equal to Sir, e की power alpha x प्लस बाई जीरो. sin beta ln x. E की power alpha ln x हाँ हाँ, sin beta ln x. साइन बीटा. तो बीटा यहाँ पे क्या है? के है. K sir. तो कांस्टेंट टाइम्स जब कॉम्बिनेशन लिखोगे Sin तो k के टाइम्स ln एल एन x. एक्स. पहला सोल्यूशन होगा साइन के एल एन एक्स, दूसरा कॉस के Cos एल एन k एक्स. ln x. तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो ये आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. और यू कैन सिंप्लीफाई विद दैट ओल्ड टेक्निक. वो कैसे करते थे आप कॉलेज में? फिट एक्स इक्वल टू ई पावर टी. So by fitting x equal to e power t, you can convert this equation into constant coefficient equation. Then you will have solution in exponential form. वो भी कर सकते हो आप, but you can apply directly Cauchy-Euler form. So solution are sine k ln x and e power alpha ln x. Alpha is 0, real part of this number. ये लिखा था ना हमने, इसको लिखा था आपने r इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा. So alpha 0, beta k. So differentiate it to use boundary condition. So C1 derivative of sine will be cos k ln x. So k ln x का k divided by x. Then C2 k sine k ln x. So use boundary condition. First boundary condition, y dash at 1 equal to 0. This will give you
cos 0 will be 1, so C1 will be 0. Second boundary condition, that will give you C minus C2 K, x को हमने फिट किया ना e⁻2π, C1 तो 0 है, सेकेंड टर्म ही आएगा ये C2, ठीक है, साइन K 2n, ln सर 2n आ जाएगा ना कौन सा सर, 2n आ जाएगा ना। 2n कहाँ से आएगा, अच्छा पाई है सर, हाँ 2 पाई, 2k पाई हो जाएगा। 2k पाई हो जाएगा, तो तभी उसने इस फॉर्म में दिया है कि log e की पावर r है ना, सो दिस इज इक्वल टू 0, तो C2 अगर नॉन जीरो है, k तो नॉन जीरो है ही, अगर C2 नॉन जीरो है तो आपको क्या मिलेगा, साइन 2k पाई इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज क्या किया है, ln e⁻2π, दैट इज 2π, है ना, so sin 2k pi 0 means 2k pi is a multiple of pi, तो यहाँ से आप k निकाल लो, k क्या आ जाएगा n/2, एक्सक्लूडिंग 0 ऑप्शन, और क्या लैम्डा, अच्छा ये तो k आया, अभी लैम्डा निकालना है ना, तो लैम्डा विल बी n²/4, यहाँ पे n तो था, प्लस माइनस भी हो सकता है, बट लैम्डा के अंदर आके ये बन जाएगा, तो लिख देते हैं 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बट हियर only plus. So in conclusion, so eigenvalues are, चलो लैम्डा लिख दिया, चलो आइगन फंक्शन भी लिख देते हैं, the corresponding आइगन फंक्शंस आर, यूजुअली लैम्डा n लगा देते हैं पे लेवल, तो वो क्या बनेंगे, कॉस बच जाएगा, C2 नॉन जीरो लिया है तो C2 के साथ ये कॉस था, कॉस k n/2, तो अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं साथ फाइनली, सो फाइनली एक आपको मिला 0 के कॉरस्पॉन्डिंग और एक आपको मिला यहाँ पे, सो फाइनली आइगन वैल्यूज आर लैम्डा, अब 0 को यहाँ डाल सकते हो ना इनके अंदर, एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस आर cos n log x/2 एंड n इज 0 1 2 3, cos 0 1 होता है तो आप इसके अंदर वो फिट कर सकते हो जो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग था, सो इन दैट वे। अब ये एग्जाम्पल का मोटिवेशन क्या था कि जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, जैसे ये पहला था, इक्वेशन सिंपल थी कांस्टेंट कोफिशिएंट, बट यू मे हैव वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वेशन, ठीक है, अच्छा, now we go back to proof. We have shown that eigenvalues are real and eigenfunctions are orthogonal. So these two results are valid for both regular and periodic boundary conditions.
अगर पीरियोडिक भी हो तो भी वैलिड है ये। पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन कौन सी थी, ध्यान है? हैं? रिपीट होता हो, y at a इक्वल टू y at b, y डैश a इक्वल टू y डैश b। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। थर्ड थर्ड रिजल्ट जो था, जो आइगन वैल्यू सिंपल है, दैट इज नॉट वैलिड फॉर, that is not valid for a problem with periodic boundary condition. So this example again says that uh, solve the Sturm-Liouville boundary value problem. Same equation that we considered earlier with boundary conditions y0 equal to y at pi, and second condition y dash 0 equal to y dash pi. कौन सी कंडीशंस हैं ये? देखो पहले वाली कंडीशन में फर्क क्या था, पहले आपका था कि एक कंडीशन आपकी ए पे है ना, यहाँ पे ए 0 है, दूसरी कंडीशन आपकी बी पे है, बी पाई है, बट यहाँ पे क्या मिक्स है ये, ठीक है, 0 इक्वल टू पाई। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ periodic boundary conditions. So these boundary conditions are periodic. So you need to solve this Sturm-Liouville problem, and you can check from previous example and this example, equation is same, but due to different boundary conditions you will get different solution. So likewise before, we need to consider three cases: lambda negative, then you can take lambda equal to minus of k square. So equation is this one. तो solution क्या होंगे? Also differentiate it to use second boundary condition. Okay, so y0 equal to y of pi, y at pi, this will give you क्या वैल्यू आएगी? फाइंड ए एंड बी। What are a and b? y0, आप ये भी कह सकते हो, एक साइड लिखना है इनको, तो y0 माइनस वाई पाई इक्वल टू 0। सर माइनस आएगा, यहाँ पे ए से पहले माइनस आएगा, बी में भी माइनस हो जाएगा ना फिर। अच्छा, चलो सेपरेट कर लो इनको ना, ए वाले अलग कर लो, बी वाले, फिर y dash 0 minus y dash pi equal to 0. So this will give you ak minus bk minus ak e power k pi plus bk e power minus k pi.
Solve for capital A and capital B. कर लेना इसको, ठीक है, प्लस माइनस करके ए बी इक्वल टू 0. So only trivial solution. Second case, when lambda equal to 0, in this case OD will be so you got y equal to a plus bx or ax plus b, whatever you want. आप ये भी उल्टा भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो. So find y dash, this is equal to a. तो बाउंड्री कंडीशन से क्या मिलेगा आपको, y0 पहली कंडीशन है ना, y0 so this will give you b minus a, ठीक है. सर y of 0 तो a होगा ना. क्या लिखा है मैंने, ax प्लस अच्छा b. ax plus b कर दिया, ठीक है. अगर a प्लस बी एक्स लिखोगे तो दूसरा आ जाएगा, ठीक. अब कुछ भी लिख सकते हो, नोटेशन नहीं. y डैश 0 माइनस y डैश पाई, ये बोलो कितना है. सर ax plus b लेट किया सर तो b पाई a के minus साथ b. आएगा. सर b minus b हो जाएगा. b माइनस सर a minus a. बस a माइनस से कैसे आएगा. सर आपने ax अच्छा, plus b लिया है. सर a minus a होगा ना. a माइनस a, तो 0 इक्वल टू 0 तो कुछ मिला ही नहीं यहाँ से, तो ठीक है. सर ऊपर वाली इक्वेशन में आपने x a के साथ लिया ना, ax plus b, तो पाई a के साथ आएगा. चलो जी, ठीक है. a पाई माइनस b, ओके. तो सेकंड तो ये दे रहा है, तो क्या 0 आया यहाँ से, सर a 0 हो जाएगा. a 0 हो जाएगा. सो यू आर नॉट गेटिंग b, है ना. a minus here b remains arbitrary. We can take any non-zero, so we can take b equal to 1. So eigen function is yx equal to 1. You can take any non-zero constant. And case 3, now you need to take lambda positive. So we can write lambda equal to k square. Therefore, equation is y double prime plus k square y equal to 0. And solution is a cos kx plus b sin of kx. Use boundary conditions. तो डेरिवेटिव भी कर लेते हैं साथ के साथ. माइनस ए के साइन के एक्स प्लस बी के कॉस के एक्स. सो यूज बाउंड्री कंडीशन. सो y0
minus y pi equal to 0. So this implies a सर बी क्या आएगा? क्या नहीं सर, ए माइनस a minus ए कॉस के पाई माइनस बी साइन के पाई। minus b sin k साइन pi, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, a कॉमन आ गया, सो 1 minus cos k pi, ठीक है, एंड माइनस b sin k pi इक्वल टू 0. सेकंड कंडीशन, साइन के पाई से सेकंड कंडीशन बोलो। a के साथ क्या आएगा? के साइन के पाई a के साथ क्या आएगा? k sin के k पाई pi. b के साथ के माइनस बी के साथ के भी कॉमन आ जाएगा 1 माइनस कॉस के पाई हो जाएगा। b के 1 minus cos k pi, ठीक है, k को भी छोड़ सकते हो, दोनों साइड दोनों में है ये आ रहा है सबका? यस सर। अच्छा, इसका सोल्यूशन निकालो। वैसे तो आप प्लस माइनस से भी निकाल सकते हो, बट दिस इज ए होमोजीनियस सिस्टम है ना, नॉन जीरो सोल्यूशन कब मिलता है इसका? 2/2 सिस्टम है ना, 2/2 ए और कैपिटल ए एंड कैपिटल बी में। एक तो सोल्यूशन जीरो है इसका, है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी इक्वल टू जीरो विल ऑलवेज सेटिस्फाई। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब मिलता है इसका? डिटर्मिनेंट 0 डिटरमिनेंट जीरो, शाबाश। सो देयरफॉर तो उससे निकाल लो, अगर प्लस माइनस नहीं करना, देयरफॉर नॉन ट्रिवियल solution, thus non-trivial solution exists if and only if, दोनों वे में ट्रू है स्टेटमेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज जीरो। तो वो आप कर लो 1 माइनस कॉस के पाई, इधर था माइनस कोफिशिएंट वाला, साइन ऑफ के पाई एंड 1 माइनस कॉस के पाई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये जीरो क्यों होता है? मैंने पहले भी पूछा था आप लोग से। बोलो, चलो सिंपलीफाई करो इसको, अभी मीटिंग हमारी बंद हो जाएगी 10 मिनट में। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ एंड सर ओनली, 2 माइनस 2 कॉस के पाई। तो cos k pi 1 आ गया। यस सर। ओके, सो सॉल्व ऑफ दिस डिटरमिनेंट, सो यू गॉट cos k pi इक्वल टू 1। सर 2n प्लस 1 तो बाई 2 पे आ ये जाएगा 1। cos कब 1 होता है? ये 2n प्लस 1 बाई 2 पाई। cos 1,
अच्छा 0 होता तो है। 2 cos k pi is equal to 1 नहीं 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आया ना, तो 2 हो गया वो। cos k पाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो k पाई कितना होगा? पाई का मल्टीपल होगा नहीं? 2n पाई आ जाएगा। यस सर, और n की वैल्यूज इक्वल क्या? मल्टीपल 1 2 3। प्लस माइनस भी तो हो सकती हाँ है। yes। सो व्हाट यू गॉट k 2n। जीरो वाला केस तो हमने पहले कर लिया। सो आइगन वैल्यूज आर सर यहाँ पे cos k pi कैसे है? 2 cos k pi नहीं आना चाहिए? 1 मिनट पीछे करना, पीछे वाला पेज। यस सर, 2 cos k pi आना चाहिए। 2 यार 1 माइनस कॉस के पाई का स्क्वायर हो रहा है और उसके बाद साइन स्क्वायर हो रहा है, तो 2 ऐड हो जाएंगे ना। आएंगे ना। ओपन कर लो इसको, इतना तो कुछ है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा ना सलोनी। हाँ तो साथ में -2 cos k pi तो रहा। हाँ तो 1 प्लस 1 हो गया ना, 1 पहले भी तो हो रहा है स्क्वायर में। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है। यस सर ठीक है। तो आइगन वैल्यूज आज क्या बनी? आइगन वैल्यू के लैम्डा लिखना है ना हमने, लैम्डा। सो 4n स्क्वायर। जीरो वाला केस हमने लिख लिया पहले, सो n विल बी 1 2 3 एटसेट्रा। तो आइगन फंक्शन क्या बने यहाँ पे? ए बी तो कुछ नहीं मिला ना हमें, आइगन फंक्शन क्या बने फिर हमारे? यू गॉट के। सो व्हाट इज सोल्यूशन? सर 1 लिया था y इक्वल टू 1 वो तो 0 पिछला पे। हो गया ना, वो छोड़ो। लैम्डा पॉजिटिव वाले केस में यू गॉट। सो लाइकवाइज अदर प्रॉब्लम यू आर नॉट गेटिंग कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। वहां पे ये था ना कि ए कांस्टेंट तो जीरो बन जाता था और एक ही बचता था, बट यहाँ दोनों हैं। तो सॉल्यूशन इसी फॉर्म में है, कॉस और साइन। सो इन दिस प्रॉब्लम, इन this periodic boundary conditions, you are getting two eigenfunctions together. So lambda n equal to, so these are eigenvalues and corresponding eigenfunctions are। तो एक को मैं कह रहा हूं फाई एन एक्स, पहला हमने कॉस लिखा था या साइन कॉस। एक कॉस 2nx है और दूसरा साइन 2nx एंड n इज 1 2 3 एटसेट्रा। तो इस प्रॉब्लम में और पिछली प्रॉब्लम में फिर डिफरेंस क्या रहा? फिर एक हमने थ्योरम प्रूव किया था, आइगन वैल्यूज आर सिंपल। सो फॉर रेगुलर प्रॉब्लम, for one eigenvalue you will have only one eigenfunction, but here this problem is not regular boundary value problem, this is mixed type. So in that case, corresponding to one eigenvalue you are getting two different eigenfunctions. ठीक है, तो ये नोट लिख लो so quickly, so before the meeting ends in 2-3 minutes. So here we get two Li eigenfunctions for one eigenvalue. So here eigenvalues are not simple. बाकी जो दो रिजल्ट थे कौन से थे? रियल आइगन वैल्यू
and orthogonal eigenvectors, they are valid. They are valid for periodic boundary conditions as well. So here for one eigenvalue you are getting two different eigenfunctions. ठीक है। अब अगर प्रूफ करना हो तो अगर हमने बैक जाए प्रूफ में, हमने फर्स्ट प्रूफ किया था आइगन वैल्यू दे आर रियल। गो बैक, लैग्रांज आइडेंटिटी पढ़ी थी, लैग्रांज आइडेंटिटी। इसके बाद आप प्रूफ करोगे आइगन वैल्यू रियल। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेम है, सेम मेथड लगेगा। फिर आप एंड में लगाते हो लैग्रांज आइडेंटिटी, सिर्फ यही डेविएशन रहेगा। you made left hand side 0 due to homogeneous boundary condition. So these things, अगर यहाँ पे तो कंडीशन थी अल्फा 1 YA प्लस बीटा 1 Y डैश A, जो BA Y लिखा था मैंने। अगर पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन हो स्टिल यू गॉट 0 हियर, और आइगन फंक्शन में भी सेम है, उसमें भी सेम स्ट्रेटजी है। बट थर्ड थ्योरम दैट इज वैलिड ओनली फॉर रेगुलर प्रॉब्लम। तो ये एग्जांपल करने का मोटिवेशन लास्ट वाले का यही है, इफ यू हैव पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन देन यू कैन गेट two eigen function corresponding to one eigen value. That's it. So tomorrow we will continue non-homogeneous Sturm-Liouville boundary value problem. Any query before meeting ends? बोलिए। नो सर। आसान है टॉपिक, ये वैसे आसान है ये। यस सर।